music has been brilliant, which has gone and touched the people's heart. But unfortunately, the films did not resonate well with all those who went and saw it. ये गाना आप सुनना, the prelude of this song that is taken from Diwa's theme music. अच्छा, एक बहुत अच्छा ट्रिविया आपको देता हूं मैं. इस टाइटल के प्रोड्यूसर ने 6 वर्जन्स बनाए थे ऑफ द सेम सॉन्ग, सेम लिरिक्स. मतलब ही सेड कि मैं कंपटीशन कर रहा हूं म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच में. आशु जी, ये इसकी सीडी मेरे गाड़ी में होती थी हमेशा. ये ट्रेन के ऊपर गाना किया था years back. There is another song जो अगेन ट्रेन के ऊपर किया था. Do you remember that? इसके पहले, बहुत साल पहले, हाँ हम दोनों दो प्रेमी फ्रॉम अजनबी. हाँ. मैं पहले से ही माफी मांगना चाहती हूँ अपने लिए, सौरभ और आशु जी के लिए नहीं, पर अगर मैंने कोई गाने खराब किए हैं, क्योंकि आप हम तीनों की तरफ से माफी मांगिए प्लीज. नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं बहुत अच्छा गाया. You're listening to Dime a Dozen Films podcast. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hello to everybody, all our listeners, and our encouraging force for taking us further and further. Hello, Nalini ji. Hello, Saurabh. Hope you all are having a great day despite the rains coming down, lashing down in the city. I love it. I love the rains coming down, brought the mercury down, makes the temperature look that much more bearable. The greens are looking that much more cleaner, except that when you come down on the roads, then the potholes also come out there. But I'm having a great, hope you all had a great day as well. Hello, Ashu ji. I had a great day. I had a very relaxing day today after a few days. And yes, the rain and the plants, my plants also, the leaves, they end up looking so beautiful. Yeah. How are you doing, Saurabh? I am fine, Ashu ji. Hi, Nalini ji. Hello, Saurabh. Hi, Saurabh. Hi, how are you? Hi. So today we're going to speak about something really interesting, really nice, and something that is very close to all the three of us. We hope to have a very melodious musical journey in this one, except that we will be talking about music that has been brilliant, which has gone and touched the people's heart, which has got the nation swaying to its beats. But unfortunately, the films did not resonate well with all those who went and saw it. A dichotomy, but we will be speaking on the positive side. We will speak about the music of such films and how it has affected us, or what we like about the music and what we think about the music vis-a-vis the film. And I would like to start with Saurabh. We will go one at a time. Saurabh will name the film and the music, and we'll talk about the songs. Then Nalini ji will start. She will name one. Then I will come and pick my one up, and then we'll go in the cyclic order. I know there are lots of films like this, but obviously we are always caught up with time, unfortunately, and we will have to sort of limit it within the time frame that we have. Nevertheless, let's have great fun. Let's enjoy. Saurabh, over to you. Yeah, so again, very difficult because there are so many movies which like story wise, acting wise बहुत ही cringe था, और मगर उसके गाने बहुत बढ़िया थे. So the first film which I would like to mention, it's a cringe fest movie. अच्छा. और उसके बारे में बहुत ट्रोल्स हुए हैं, बहुत सारे मीम्स बने, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने पैसा कमाया उस फिल्म से. एंड आई थिंक उस फिल्म के वजह से उसके गाने जो थे, मेलोडियस सॉन्ग, वेरी गुड सॉन्ग्स, that got under the radar, and I think that is मैं प्रेम की दीवानी हूँ. Oh, मैं प्रेम की दीवानी. Acha, that's your first choice. Oh, yeah, it was a cringe fest. Superbly so bad that it's good category में आने वाली पिक्चर है ये. So music was composed by Anu Malik and lyrics were written by Dev Kohli. और इसके जो गाने, most of the songs were sung by चित्रा जी, के चित्रा and के ने most of the songs गाए. और ये फिल्म इतनी खराब है तो this guy सूरज बजातिया, after 3 back-to-back hit films, he thought that he will make something very appealing to youth and all, और वो turned out to be something else. It was actually a remake of his old film, old Rajshri film, Chit Chor, directed by Basu Chatterjee.
तो उसकी रीमेक थी एंड ही ट्राइड टू मॉडर्नाइज दैट स्टोरी, बट इट टर्न्ड आउट टू बी, एंड एवरी एक्टर लाइक ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, कोकेन वोकेन स्नॉट करके एक्टिंग कर रहे हैं, बिकॉज दे आर लाइक सुपर्ब हाई एनर्जी, हाय हाय अंकल, ऐसे ऋतिक रोशन कर रहा था। और वो दैट गाय पंकज कपूर इज वेयरिंग अ कैप व्हिच सेज डैड। मैंने प्यार किया को रेप्लिकेट करने की कोशिश की, टर्न्ड आउट टू बी वेरी क्रिंज। और उसमें एक एनिमेटेड पैरेट भी है। हाँ, I remember. एंड द सॉन्ग्स इतने अच्छे हैं, मगर आप वो उसका वीडियो नहीं देख सकते बिकॉज इट इज पिक्चराइज सो बैडली। माय फेवरेट सॉन्ग्स आर मेरी जिंदगी में चले आए, देन देयर इज अ सॉन्ग कॉल्ड कसम की कसम, संग बाय चित्रा एंड शान। उसमें तो वो गिटार स्ट्रिंग्स भी उसको पकड़ना नहीं आ रहा था, करीना को। These two songs are my favorite, and one more, Bani Re Bani, Prem Diwani Bani, that is also nice song, and very different from Anu Malik's other song. I think Anu Malik of 2000s were very different from his 90s and 80s music. 2000 he was doing very he was experimenting with music, and he was giving some good quality chartbuster songs. This is, I think it was 2003, so दैट टाइम 2000s और 2005 के बीच में उन्होंने बहुत डिफरेंट म्यूजिक दिया है, लाइक अशोका, अक्स, यादें आल्सो कम्स अंडर दिस कैटेगरी बिकॉज उसके भी गाने बहुत अच्छे थे, मूवी बकवास थी। और या दिस इज माय टेक, मैं प्रेम की दीवानी। थोड़ा चार चांद लगाते हैं तुम्हारे लिस्ट में, तुम्हारे गानों की चॉइस में सौरभ, एक आधा गाना जो है ना हम करके सुनाओ यार। कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे, अब ये प्यार न होगा फिर हमसे, है कसम की कसम है कसम से, हमको प्यार है सिर्फ तुमसे। सौरभ तुम्हारा इमोशन तुम्हारे यहाँ से निकल के हम तक टच किया, मुझे तो टच किया। नलिनी जी, आपको टच किया क्या उसका, सौरभ का इमोशन सिंगिंग का? आशु जी, आई एम गॉबस्मैक्ड बाय हिज सिंगिंग। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा। और आशु जी, आप सौरभ के पास चले गए थे, मैं आपसे बोलना चाहती थी पहले that you're going to sing right in this podcast as well, and now we have two singers, आशु जी and सौरभ, तो बहुत मजा आएगा। एंड सौरभ, मुझे पूछना था, ये मैं प्रेम की दीवानी हूँ में, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, अभिषेक बच्चन को काफी प्रेज नहीं मिली थी उसके इस फिल्म के लिए? one more, yeah, I forgot to tell this point कि इसमें as I said, every actor was like it's look like they snorted cocaine, मतलब पूरा high energy, but Abhishek Bachchan, if you see, very calm, subtle, ऐसे बात करते हैं उसमें, हाय अंकल, हाय आंटी, मतलब उसको एकदम सोबर दिखाया है। He was praised for it, yeah. और एक बहुत cringe scene है, very famous cringe scene in this movie where when they get to know that Hrithik Roshan is not the boss, he is the employee of Abhishek Bachchan. So Abhishek Bachchan was the person जिसके लिए करीना कपूर का वो लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे, and then they get to know that Hrithik Roshan is not the person, Abhishek Bachchan is the person. So करीना कपूर was telling that मैं इससे शादी नहीं करूंगी, मैं उसी से शादी करूंगी, प्रेम से शादी करूंगी, प्रेम means Hrithik Roshan. So the Kareena Kapoor's mom talks to Kareena Kapoor and asks कि तुम लोग के बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना? So she says, कुछ नहीं हुआ। फिर प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं हुआ तो शादी करो अभिषेक बच्चन से। Yeah. पर मुझे बताओ सौरभ, तुमने इसकी ओरिजिनल वाली देखी थी? बिकॉज उसके गाने भी बहुत ही अच्छे थे। बहुत अच्छे, वो फिल्म ही अच्छी थी। नाइस मूवी, इट वाज अ नाइस मूवी। हाँ, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि तुमने देखी थी, डिड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू वॉच द ओरिजिनल आल्सो? यस, दूरदर्शन में देखी थी ना। या आई हैव सीन द फिल्म। बहुत अच्छे गाने थे उसके और बहुत सोशल फिल्म थी। इट वाज अ गुड फिल्म। एंड येसुदास के बहुत अच्छे गाने थे चिच्चोर में। हाँ,
गोरी आपको गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा चिच्चोर का ही गाना था ना? हाँ 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 बिल्कुल। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, फिर आज से पहले पहले हाँ, करेक्ट। फिर वो कौन सा, आई तेरे फॉरगॉट द सुर लिरिक्स। में हाँ, तेरे तेरे सुर में, दैट आल्सो, या। अच्छा है, वेरी गुड, नाइस म्यूजिकल जर्नी। इट इज स्ट्राइकिंग दैट कि उसका जो रीमेक था, ओरिजिनल फिल्म विच वाज सो ब्रिलियंट, विच हैड सच ब्रिलियंट म्यूजिक, दे कुड ओनली रेप्लिकेट अ गुड म्यूजिक ट्रैक फॉर दिस मैं प्रेम की दीवानी हूं, एंड द फिल्म डिड वर्क एट ऑल. It's quite maybe changing times, or maybe the adaptation was not right, or whatever must have happened, but they lost the plot somewhere in the film. Nalini ji, आपका क्या है? Which is your first film for this list that you have? Yeah, so my first film would be a film which came in 1976, and everybody loves the music of this film. It's really beautiful. ये भप्पी लाहिरी का म्यूजिक है. It's a film called चलते चलते, जिसमें सिमी गरेवाल थी. आपने देखी है हाँ ये फिल्म? हाँ हाँ, देखिए बहुत पुरानी फिल्म है, हालांकि मुझे फिल्म के बारे में बिल्कुल कुछ याद नहीं है, जी. बट गाने गाने जरूर याद हैं. हाँ, और सबको वो गाना तो पसंद है ही, चलते चलते, किशोर कुमार वाला. बट हम्म. आई लव दैट सॉन्ग आशु जी. बट मेरा फेवरेट उसमें है वो जाना कहाँ है प्यार यहाँ है, सुलक्षणा हम्म. पंडित और बप्पी लाहिरी. वो गा दो ना. करेक्ट. वो दो लाइनें उसकी अगर किसी को आती हैं तो गा दीजिए ना. दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. नलिनी जी, नलिनी जी, इट विल नॉट बी फेयर, आप दो लाइनें गाओ ना. नहीं नहीं, मुझे गाना तो आता है. अरे मैं आप आप बहुत जैसे आप बहुत अच्छा गाती हैं, आप आज छुपाओ सब मत. गाएंगे, हम्म, आज सब आज तो आप, गवाएंगे। आज सब गाएंगे. नहीं. आज आपकी, हाँ, आज आपके लिए, आपकी तरफ से भी दो लाइन सुनने के लिए हम और ऑडियंस लिसनर्स भी बेताब हैं. यस। लिसनर्स बेचारे. जाना कहाँ है प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा. क्या बात है, अरे इतनी वाह, सुरीले हो आप, इतने सुरीले हो, और आप, यू वर डकिंग इट, भाग रही थी आप. दिस वाज नॉट फेयर. नहीं आशु जी, ये गाना इतना सुंदर है क्योंकि इसको हार्मनीज में गाते हैं ना. द हाँ. हार्मनीज, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल दिस सॉन्ग. इसकी ये फिल्म, जैसे सौरभ ने बोली, ये पूरी फिल्म आखिर से आई मीन शुरू से आखिर तक क्रिंज फेस्ट ही है, प्लॉट एंड एवरीथिंग. बट और सौरभ अब हमें बताएगा, इसकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है. सौरभ, ये फिल्म मगर मगर नलिनी जी, एक बात कहना चाहता हूँ, वो सुलोचना पंडित इतने मेलोडियसली गाते हैं, एंड बीच में बप्पीदा का आवाज आता है, जाना कहाँ है। हाँ, या सुलोचना सुलोचना पंडित नहीं, सुलक्षणा, सुलक्षणा पंडित. सुलक्षणा. सुलक्षणा पंडित, या. हाँ। अच्छा सौरभ, ये कौन सी अंग्रेजी फिल्म की अपेरेंटली अपेरेंटली आई एम इवन एम्बैरेस्ड टू से इट, अपेरेंटली रीमेक थी चलते चलते? कोई एक So अंग्रेजी it was फिल्म. inspired from Clint Eastwood's directorial debut film, Play Misty with Me. या, आई एम क्लोजिंग माय आईज एंड इयर्स. One more interesting thing, कि चलते चलते ये जो फिल्म है, इस पे भी एक हिंदी फिल्म बनी है, inspired by this story. अच्छा. Yeah, in 2000s, and that was also utter flop film, acted by Govinda and Tabu. I have seen गोविंदा that film. टब्बू. कौन सी फिल्म है? I have seen it for sure. दिल ने जिसे याद किया, दिल ने जिसे फिर याद याद किया. किया. या Yeah. या. ओह राइट. और ये फिल्म, पता है, इट्स एन अननोन डायरेक्टर. आशु जी को पता होगा. चलते चलते, आई हैव नेवर हर्ड दिस नेम बिफोर. द नेम ऑफ द डायरेक्टर सुंदर दार. ये कौन थे आशु जी? नहीं, मुझे भी नहीं पता. आई अच्छा. डोंट नो. हाँ, आई एम नॉट श्योर. और इसका एक वो भी गाना है ना, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है. हाँ, वो ऐसा वाला का स्टोरी सुना हो ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है नलिनी जी. जी. हाँ नलिनी जी, ये बताइए कि वो ऐसा क्यों है? वो मीटर मिलाने के लिए एक्चुअली, जब इन्होंने बपीदा ने जब शैलेंद्र सिंह को बोला था कि तुम ऐसे गाओ, तो शैलेंद्र सिंह के एक इंटरव्यू में मैंने देखा था दैट ही वाज वेरी फ्लमक्स्ड बाय दिस, एंड ही डिडंट एग्री, एंड ही सेज ऐसे क्यों? तो वो कहता है नहीं, वो मीटर मिलाने के लिए. कहता है नहीं, तो मीटर मिलाने के लिए आई कैन से ऐसा. ही सेड नहीं, ऐसा हो जाता है. और फिर उसको गा के सुनाया था बपीदा ने. तो फिर बोला,
प्यार में कभी कभी ऐसा हो जा he I was can imagine Bapida singing like that. प्यार में कभी ऐसा हो जाता हाँ, उफ, मतलब वो जो वर्ड ऐसा है वो सडनली मुखड़े को एक इंजेक्शन के तौर पे काम करता है, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो वो बहुत अनकंफर्टेबल थे शैलेंद्र सिंह, बट उन्होंने गा दिया। बट दैट बिकेम एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ टॉकिंग पॉइंट अबाउट दैट सॉन्ग, नहीं सौरभ, आशुजी, कि हाँ कैसे क्यों बिल्कुल। गा रहे हैं। और ऐसे ऐसे ही होता है कि कभी कभी कोई वर्ड्स इस तरीके से ढूंढ के लेके आते हैं। जैसे एक पिक्चर थी गुलामी, हम्म। उसका उसका मुखड़ा तो मैंने एक बार दादा को पूछा था कि इसका मतलब क्या है। वो मुखड़ा भी हाँ बोला नहीं जाता है मेरे के। हाँ बेहाल मस्ती मुकुंद रंजिश बहारे हिजरा में सारा दिल है, हाँ, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। हमारा लेकिन दिल। पहले लाइन का मतलब क्या है? गाना इतना ब्लॉकबस्टर है, लेकिन हम्म। उसका फर्स्ट लाइन का मतलब क्या है? मुझे डाउट है 95% ऑफ द पीपल इंडियंस हु हैव लिसन्ड टू इट, इवन मोर, किसी को उसका मुखड़े का मतलब ही नहीं पता होगा कि क्या है। बट वो एक एक अजीब सा एक एक एनिग्मेटिक इंट्रीग जो है ना, वो जो वर्ड्स क्रिएट करते हैं, वो भी कभी कभी जो है ना बात कर बन जाती है और लोग जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आशु जी, मुझे वो गाना इतना पसंद है और मैं इतना गाती भी थी वो गाना, और मुझे कुछ आइडिया नहीं टिल वेरी रिसेंटली। गुलजार साहब ने लिखा था वो, तो हाँ उन्होंने उसका मतलब बताया था और मैं भूल गई। हाँ। नहीं, मुझे तो दादा ने भी उसका मतलब बताया था कि हाँ इसका मतलब ऐसा ऐसा है, बट अभी मुझे याद भी नहीं है कि वो मतलब क्या उन्होंने बताया था। आमिर खुसरो साहब की लाइन से। हाँ, और वो हाँ, कुछ इट्स गॉट समथिंग टू डू विद द जिप्सी लाइफ और समथिंग, आई डोंट नो, बट इट वाज। रिलेटेड टू आई थिंक टूटा आशिक, उसको और परेशान मत करो, समथिंग लाइक दैट मीनिंग। हम्म। और पता है, हम लोग अभी प्रोनाउंसिएशंस की बात कर रहे थे ना, वो ऐसा हो जाता है। तो आप दोनों एक गाना और था, ऑफ कोर्स हम उसकी बात, फिल्म की बात नहीं कर रहे। वो नसीब में जब लता मंगेशकर गाती है, मैंने बहुत लोगों से पूछा था, किसी के पास इसका आंसर नहीं है। सो व्हेन शी सेज, लता जी व्हेन शी सिंग्स, तेरे नसीब में मैं हूं या नहीं मेरे नसीब में, सो इन द फर्स्ट मुखड़ा एंड अंतरा एंड ऑल शी सेज तेरे, शी प्रोनाउंस, देन शी सेज तेरे तेरे, सो उसका क्या मतलब है? तेरे तेरे, नसीब। हाँ, तो वो क्यों ऐसे बोली? एंड सो आई वाज आस्किंग सम पीपल एंड दे सेड नो, इट्स जस्ट टू मेक इट लिटिल वेस्टर्न। आई सेड नो, बट इफ यू आर मेकिंग इट वेस्टर्न, you'll make the whole thing western, right? Because she's singing in that gown in that club, and so बट सम सिंगर्स डू दैट, सम सिंगर्स वो थोड़ा उसमें थोड़ा वेस्टर्न वो थोड़ा टच डालते हैं। लाइक आई रिमेम्बर के सिंगिंग वन सॉन्ग फॉर दिस फिल्म कॉल्ड फुटपाथ। hmm, उसमें या एक लाइन है, तुम पे दिल आइयां वे, समथिंग लाइक दैट। सो ही सिंग्स तुम पे दिल आइयां, दिल ऐसे। अच्छा हाँ हाँ। अच्छा। नहीं, लेकिन नलिनी जी का ये बोलना है कि वो जो उस तरीके का अगर एक्सेंट डालना है तो कंसिस्टेंटली हर बार पूरे गाने में क्यों नहीं डाला? hmm. कुछ जगह पे छोड़ करके फिर कुछ जगह पे किया, ऐसा क्यों है? व्हाट व्हाई वाज देयर इनकंसिस्टेंसी इन दैट? इज दैट That's my राइट? question. Absolutely. That was my question. Till today, I don't have an answer. Because when the song starts off, she says Tere Naseeb mein, and then she's Tere Naseeb. She goes back to Tere, and then she comes हाँ, back to Tere Mere, you know. So I could never या understand that. But it's interesting. Yeah. I could have understood if there were two singers, two actresses singing, because कभी कभी ऐसा होता है कि सेम फीमेल वॉइस जो है वो दो एक्ट्रेसेस स्क्रीन पे करती हैं तो थोड़ा डिमार्केशन के लिए करता है। बट यहाँ पे तो हेमा जी अकेली गा रही है, देयर आर नो टू एक्ट्रेसेस आल्सो। हाँ, तो वो तो तो मिस्ट्री रहेगी। उसका म्यूजिक शायद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था, नहीं? हाँ नसीब जी, का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक थोड़ा टिंज देने के लिए कोशिश किया होगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बहुत सारे गानों में ऐसा हुआ है। जैसे कि मिस्टर इंडिया में किशोर कुमार का एक गाना है ना, वो हम हाँ, करते हैं हम प्यार किसका? मिस्टर इंडिया से। इंडिया से, हाँ। तो उसमें एक लाइन है ना, क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में, समथिंग दैट लाइन इज दैट। तो वो हाँ। किशोर कुमार गाता है, अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में, ऐसे। हाँ, अच्छा। पर वो र वाला जो चक्कर है ना, वो उसको स्टाइलिंग नहीं है, बट वो थोड़ा एक मतलब एक एक्सप्रेशन है जो अंडरस्टूड है, वो इंटरेस्टिंग करता है गाने को और मजा आता है। आपको एक वेरिएशन भी मिलता है, इवन जब लोग गाते हैं तो उसको एप करने के चक्कर में इवन हैव अ लॉट ऑफ फन विद इट। दैट्स फाइन, दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एक्सप्रेशन।
ये वाला एक्सप्रेशन कुछ मतलब तेरे नसीब में, वो तो कुछ समझ में कुछ पता नहीं, समझ there में must नहीं आया। there must be a thought to it, but that thought has not reached the audience. Yes, it hasn't. And Ashuji, I just wanted to finish off about Chalte Chalte. All the songs are beautiful in this album. Chalte Chalte, फिर अभी प्यार में we've discussed that. और एक इसमें seduction वाला गाना है जो सिमी गरेवाल और विशाल आनंद के पास जाती है. That's also a very beautiful song. The melody is so lovely. It goes दूर दूर तुम रहे पुकारते हम रहे आज की रात तुम जाओ ना. Do you remember that song? No, I don't. Oh, that's a very pretty song. Saurabh, do you remember that song? No idea. वो seductive वाला? Very seductive song. Yeah, no idea. I can't sing it, but yeah, so this entire album is beautiful. So that would be my first choice of a film that didn't work at the box office, which was also pretty much a cringe fest, and the music was fabulous. On loop you can listen to these songs, you know. Brilliant, very good choice and good songs also. मतलब आज भी हम लोग जब गाना सुनते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिकली गाने को हम करना शुरू कर देते हैं. हाँ. And if you can manage to do that even today, then you know that the song has passed the test of time. जी. That is what is brilliant. ठीक है, तो मेरी बारी है. जी. मैं एक ऐसी फिल्म का नाम लूंगा जो फिल्म क्रिंज फेस्ट तो नहीं थी. फिल्म इनफैक्ट जब लगी तब चली नहीं, बट बाद में टेलीविजन पे बहुत चली है वो पिक्चर. बहुत लोगों ने देखा है. बाद में बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बोला भी है कि ये हमारी फेवरेट फिल्म है, हमको बहुत अच्छी लगती है फिल्म. लेकिन जब रिलीज हुई तब लोग आए नहीं, ऑडियंसेस आए नहीं, उन्होंने रिजेक्ट की है. हालांकि दिस फिल्म इज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म और तमिल फिल्म, और वहां पे बहुत चली. पिक्चर का नाम है रहना है तेरे दिल में. हाँ, उफ क्या म्यूजिक है, उफ. इसके सारे गाने इतने अच्छे हैं और पिक्चराइजेशन वगैरह भी अच्छी थी. और इस फिल्म में मतलब उसका वो जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी. कितना मेलोडी है, कितना प्यार है, और इस गाने में भी एक लेवल का सिडक्शन है. हाँ. मुखड़ा कितना बड़ा है. और ये गाने को मतलब आई वाज देयर व्हेन द सॉन्ग्स वर बीइंग पिक्चराइज्ड आल्सो ऑफ रहना है तेरे दिल में. बट सच कह रहा है दीवाना दिल दिल ना किसी से लगाना. कितने अच्छे गाने, इतने प्यारे गाने. तो रहना है तेरे दिल में जो है वो मुझे बहुत अच्छी फिल्म, ऑनेस्टली मुझे फिल्म ठीक लगी थी. आई नो दी, मतलब मुझे तो स्टार कास्ट एक्टर्स सारे दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन और आर स्टिल फ्रेंड्स ऑफ माइन. बट अनफॉर्चुनेटली पिक्चर जब थिएटर में लगी थी तो पिक्चर जो है वो ऑडियंसेस ने रिजेक्ट कर दी थी. पिक्चर ने बिजनेस नहीं किया था. गाने भी उस वक्त इमीडिएटली पिकअप नहीं हुए. ये गाने बाद में पिकअप हुए और लोगों को गाने इतने पसंद हैं कि आज भी लोग जो है ये गाने सुनते हैं और बहुत चाह से सुनते हैं, गुनगुनाते हैं. आप इसी में देख लीजिए कि मैंने गाना शुरू किया और नलिनी जी आपने मुझे ज्वाइन किया. इसका मतलब ये है कि गाना जो है ना, इट जस्ट अपील्स टू एवरीबॉडीज सेंसेस एंड दे ऑल लाइक इट. दे ऑल बिलीव दैट द सॉन्ग्स आर सो गुड. आशु जी, ये इसकी सीडी मेरे गाड़ी में होती थी हमेशा. मैं सुनती थी बहुत. और इस फिल्म का एक बहुत अच्छा ट्रिविया आपको देता हूं मैं. बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्रिविया है कि रहना है तेरे दिल में इस टाइटल के प्रोड्यूसर ने 6 वर्जन्स बनाए थे ऑफ द सेम सॉन्ग, सेम लिरिक्स. एक अनु मलिक ने किया था, एक विशाल शेखर ने किया था, एक मतलब ही सेड कि मैं कंपटीशन कर रहा हूँ म्यूजिक डायरेक्टर्स के बीच में और सारे लोगों को सेम लिरिक्स के साथ गाना अपनी अपनी धुन में करना है. और सारों ने अपनी अपनी धुन में गाना किया था. और एट द सेम टाइम सारे गाने शूट भी हुए थे एंड दे केम ऑन एयर ऑल्सो. एंड दिस प्रोबेबली वाज द ओनली फिल्म दैट आई कैन थिंक ऑफ जिसमें 6 गाने बिसाइड्स द प्रिंसिपल म्यूजिक डायरेक्टर 6 अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स ने गाने किए थे.
Have you heard of something like this ever? Not before yes, this. Yeah. I don't आई हैव know. हर्ड। हाँ, उसमें एक गाना है जो टीवी में प्रोमोज में भी आते थे, जब ये इसका प्रोमोज आता था गानों का एंड हम्म ट्रेलर का, तब वो हम्म गाने का भी प्रोमो आया था, मगर पिक्चर में नहीं। वो गाना आया रे आया कोई आया रे चुपके से दिल हम्म में समाया रे, दैट वाज कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। Correct. And then one more is that I think that is composed by Anand Raj Anand, I guess. रहना है तेरे दिल में, रहना है तेरे दिल, something like that. मगर कैसेट में है, मेरे पास उसका कैसेट था, उसमें सारे हाँ गाने हैं। हाँ, वो HMV का रिलीज किया हुआ म्यूजिक था, और समीर के लिरिक्स थे, और म्यूजिक जो था वो ऑब्वियसली हारिस जयराज का था। और उसका ओरिजिनल गाना एक्चुअली क्या था, मैं चेन्नई में काम कर रहा था, एंड ऑब्वियसली तमिल पीपल वर वेरी वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफ रहना है तेरे दिल में। व्हाट वाज इट कॉल्ड, सौरभ? व्हाट वाज द ओरिजिनल फिल्म कॉल्ड? मिन्नले। मिन्नले। मिन्नले वाज अ सुपर हिट ब्लॉकबस्टर फिल्म, और मैंने ये मिन्नले, आप यकीन मानेगी, मैंने ये जाकर के चेन्नई में तमिल में पिक्चर देखी हुई है, and I saw the audiences react to that film over there in that theater. But उधर में जो उसका जरा जरा का जो ओरिजिनल गाना है वसीगरा, वो, वसीगरा। हाँ, तो मेरे को जो I was doing some work at Prasad Studios in Chennai, and I remember the owner telling me at that point of time that जरा जरा महकता है बहकता है, वो जो वर्ड है जरा जरा, उसका ओरिजिनल मीनिंग जो है तमिल में, उसका मीनिंग कुछ अलग है। What is that meaning? Would you know that, Saurabh? वसीग्रा मीन्स जैसे सीडक्ट्रस बोलते हैं, वैसे उसका मेल वर्जन हाँ, so वसीग्रा, मतलब अपने वश में करने वाला वैसे। हाँ, so I remember him telling that इसका ओरिजिनल मीनिंग ये है, और जो फील है इस वर्ड के साथ उस गाने का, वो जरा जरा में वो फील नहीं आता है। So they were very possessive about their songs, about their lyrics, and the way it was done. And although this music also worked brilliantly even over here, but I'm just telling you this. This is just a little trivia, that they believed that the original words, original lyrics, match the melody far more than Zara Zara. I absolutely agree. आशु जी, अगर आप वो देखोगे वसीगरा गाना और उसकी पिक्चराइजेशन और तमिल फिल्म की सारी गानों की पिक्चराइजेशन, especially this seductive song, when I saw, because I saw the Tamil film and then I saw रहना है तेरे दिल में, and it's not a patch, that Zara Zara is not a patch on the picturization of the Tamil version. What's her name, Saurabh, that actress? Reema Sen. Reema Sen, yes. So if you look at the original, you see Reema and you see Madhavan, and you see the picturization of that, and then you see Dia Mirza and Maddie, and you'll see the difference. It's solid difference. और बैंगलोर में तो सब लोग वसीगरा वसीगरा ही गाते थे, you know, yeah. मगर रहना है तेरे दिल में जो भी 3-4 गाने that is used from मिन्नले, but there are 2 original songs also composed by Haris Jayaraj. One is रहना है तेरे दिल में, the title song, रहना है हाँ, वो सोनू निगम ने गाया है, सोनू एंड कविता कृष्णमूर्ति आई गेस, उन्होंने गाया है। और जो दूसरा गाना दिल को तुमसे प्यार हुआ, रूप कुमार राठौड़, दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, छाई है, मतलब इस तरीके का ना। Lovely, ग्रेट सॉन्ग। Yeah, and interesting thing is this song later Haris Jayaraj used in a Tamil film. Oh, did he? That's great. Yeah, Ondra Rendra नाम से, and interestingly that song was sung by Bombay Jayashree, जिन्होंने वसीगरा गाना गाया था। हाँ। Which is the song from this जिसमें सैफ की एंट्री होती है? दिल को तुमसे प्यार हुआ। हाँ, वो सैफ की एंट्री होती है, पर एक वो मैडी का भी तो गाना है जो सब लड़कों के साथ, वो कौन सा है? सच कह रहा है दीवान, अच्छा वो वाला। हाँ। इसमें जो थीम म्यूजिक है वो भी तमिल से ही उठाया है। ओ मैडी
Maddie, हाँ this guy is some fire, object of desire. हाँ. So there's the other trivia is obviously that the film was written by Vipul Shah, not the Vipul Shah director. Vipul Shah, the owner of Optimistics. He's the one who's written Rehna Hai Tere Dil Mein, the And he's original the one film. who created Comedy Circus, right? Yes, correct. Correct. And interestingly, Vipul Shah was one of the writer of 90s iconic TV show Dekh by Dekh. Oh, was he? Yes, अच्छा, आनंद महिंद्रू का. आनंद महिंद्रूस. और उसमें देख बाय देख में एक स्पेशल एपिसोड है जिसमें मेकिंग वगैरह दिखाते हैं देख बाय देख का. In that, Vipul Shah appears also on screen. So before we deviate and divert into something else, this was my first preference in terms of song, which I thought was brilliant in terms of music, and I think it will still carry on being brilliant. People will still like it in the next generation also. This is my opinion. But sort of, what is your next film that you would like to speak about? My next film, तो मैंने जो पिछला फिल्म बोला था that is from 2000s. So हम लोग 90s में भी जाते हैं, 90s में travel करते हैं. So this film is very interesting because काफी इंटरेस्टिंग वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, बट स्टिल ये फिल्म जो है वो बनी एक नाम से मगर रिलीज हुई दूसरे नाम से. Oh, ये हाँ, ये 90s में एक फिल्म आई थी सैफ अली खान की, डायरेक्टेड बाय महेश भट्ट. और उस टाइम में इस फिल्म का टाइटल था मिस्टर आशिक. फिर पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ या सम इशू हैपेंड और रिलीज होने में भी काफी देर हो गई थी. सो दिस मूवी वाज रिलीज्ड इन 1999 और टाइटल था ये है मुंबई मेरी जा. और इसका गाना, इसके म्यूजिक कंपोजर थे जतिन ललित. एंड ऑल द सॉन्ग्स वर चार्टबस्टर्स. Just remind us of the music. So मेरा चांद मुझे आया है नजर, that song. Then second is तेरी चाहत में दीवाने हुए हम. बहुत नदीम श्रवण का फील है. Yeah, no, but if you see that composition arrangement वगैरह जतिन ललित का स्टैम्प है. जतिन. हाँ. One more song is that वो भी हिट हुआ था, ये घड़ी सनम कटती नहीं, something like that. Don't know the lyrics properly मगर म्यूजिक ऐसा है. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी भी अगर आप इस गानों को खोजेंगे स्पॉटिफाई में, आपको मिस्टर आशिक के नाम से ही मिलेगा. ये है मुंबई मेरी जान के नाम से नहीं मिलेगा. जबकि ये है मुंबई, जबकि जब वो टाइटल उन्होंने चेंज किया था, दे एडेड अ टाइटल ट्रैक आल्सो, ये है मुंबई मेरी जान, ये है, बट दैट इज नॉट देयर इन द ऑडियो. अच्छा. और ऑडियो में अभी भी टाइटल मिस्टर आशिक करके लिख के आता है. तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ऑडियो पहले रिलीज कर दिया था उसके बाद में टाइटल चेंज किया? यस, ऑडियो पहले रिलीज हुई थी एंड दैट वाज चार्टबस्टर. और मैंने बीच में एक इंटरव्यू में भी देखा था वेर जतिन ललित के जतिन बोल रहे थे कि जब फिल्म पिक्चर बन के तैयार हो गई थी, तब जब बन रही थी तब म्यूजिक सिटिंग भी हो रहे थे, तब महेश भट्ट ने बोला कि ये फिल्म खराब बनने वाली है. तो अपने गानों से इस पिक्चर को बचा लो. अच्छा. या म्यूजिक इतना बढ़िया दे दो कि एटलीस्ट ये फिल्म म्यूजिक के लिए जाना जाए. सो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस एपिसोड. ये मैंने कभी सुना नहीं है इस तरीके की बात कि जहाँ पे इंसान बोलता है कि मतलब ये पिक्चर चलने वाली नहीं है या अच्छी बनने वाली नहीं है. आपको पहले से पता पिक्चर अच्छी बनने वाली? हाल ही में देखा था आरजे दिव्य सुलगामा करके एक आरजे हैं रेडियो नशा वाले. दिव्य सुलगामा, हाँ पता है. हाँ करेक्ट. तो वो एक सेगमेंट करते हैं जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर या सिंगर्स या लिरिसिस्ट से उन्हीं के गाने बजवा के उनसे गेस करवाते हैं कि कौन सा गाना है, क्योंकि वो सारे गाने अंडररेटेड सॉन्ग्स होते थे. मतलब ज्यादा रडार में आया नहीं या फिर अभी लोग भूल गए हैं, वैसे गाने सुनवाते हैं एंड दे यूज्ड टू गेस द सॉन्ग. तो उन्होंने मिस्टर आशिक का एक गाना, ये वाला गाना जो मैंने अभी बोला, ये घड़ी सनम कटती नहीं समथिंग, वो गाना उन्होंने बजाया, तब उन्होंने ये ट्रिविया दिया था. और एक खतरनाक ट्रिविया है,
और एक खतरनाक ट्रिविया, सॉरी, मेरा चांद मुझे, ये गाना आप सुनना, द प्रिलूड ऑफ दिस सॉन्ग, जो स्टार्टिंग म्यूजिक आती है, स्टार्ट में जो म्यूजिक बजता है, दैट इज टेकन फ्रॉम दीवार थीम म्यूजिक। आप दीवार का थीम म्यूजिक सुनना और इस गाने का स्टार्टिंग सुनना सेम है। अच्छा, दिस ट्रिविया वाज गिवन बाय वन एंड ओनली अमरीश दा, उन्होंने ट्रिविया दिया था। हाँ हाँ कमाल है वैसे ना, इतना सारा ट्रिविया आशु जी एक फिल्म के हाँ बारे में। हाँ। कमाल ही है। इसमें ट्विंकल खन्ना थी, बस मुझे इस फिल्म के बारे में वही याद है और कुछ भी याद नहीं। या हाँ, ट्विंकल, सैफ अली खान, कादर खान भी है इसमें, कादर खान, कादर खान हाँ, भी है? और चंकी भी है। अच्छा, चंकी भी है। अच्छा, हाँ बट आई लाइक दैट सॉन्ग अ लॉट, जिसकी आप जिक्र कर रहे थे ना शुरू में, मेरा चांद मुझे, वो बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, हाँ। करेक्ट। अच्छा जी, तो देखिए मैं भी थोड़ी सी वो हो जाती हूँ, 2010 में आ जा रही हूँ, लिटिल बिट मोर कंटेम्प्रेरी। देयर वाज अ मूवी कॉल्ड अनजाना अनजानी। यस, हाँ, 2010। रणबीर एंड प्रियंका, जी जी, डायरेक्टेड बाय सिद्धार्थ सिद्धार्थ आनंद आनंद। जी। दिस वाज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म, इथलू, आई डोंट ओके। नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट सौरभ विल नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। और ये इतनी मैंने देखी थी ये फिल्म, और चली बिल्कुल भी नहीं, और मुझे भी इतनी पसंद नहीं आई। बट इसके क्या गाने हैं, एवरी अच्छा, सॉन्ग। आपको वो याद है जिसमें वो श्रुति पाठक शुरू में वो कहती है ना, नैना लग गया बारिशा के छोटे, और मोहित हाँ चौहान, हाँ 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 हो हाँ। हो तुझे भुला दिया, वो गाना है, जरा हम्म। गा दीजिए ना आप वो। नहीं नहीं, मुझे नहीं आएगा ये गाना गाना, मुझे याद नहीं है गाना। सौरभ। मुझे इस गाने का एक लाइन बहुत पसंद है, जो हम लोग कॉलेज में सुनते रहते थे। लिरिक्स ठीक से याद नहीं है, मगर ट्राई करता हूँ। दो पल तुझसे जुड़ा था, फिर ऐसे रास्ता मुड़ा था, तुझसे जो खोने लगा जुदा जैसे होने लगा, तुझ में कुछ मेरा, समथिंग लाइक दैट। उफ, वो लाइन बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और इसका जो वो श्रुति पाठक, आई थिंक फर्स्ट टाइम वन नोटिस्ड हर, शी sang दैट पार्ट, नैना लगियां बारिशां। और उसके बाद मोहित चौहान गाता है, मोहित चौहान की आवाज भी इतनी अच्छी है, तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है। और इसमें एक लकी अली का गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, हैरत, याद है? या हाँ, हैरत। वन ऑफ द रोड सॉन्ग्स। हाँ। और एंड यू नो हु रोट लिरिक्स फॉर तुझे बुला दिया? नो नो, प्लीज टेल मी। विशाल विशाल ददलानी, करेक्ट, दादलानी। विशाल ददलानी उसका नाम तो है। उनके उनके ओरिजिनल जो पहले गाने हुआ करते थे, विशाल शेखर के जो पहले पहले गाने थे, उसमें काफी सारे गाने विशाल ने लिखे। हम्म। उन्होंने, वो एक्चुअली बहुत अंडररेटेड लिरिक्स राइटर, लिरिसिस्ट है, बहुत सारे गाने वही लिखे हैं। थ्रू हाँ, he's आशिकी, written। he only wrote मुस्सु मुस्सु आसी also, I guess he wrote। और इसमें एक और बहुत सुंदर गाना है आशु जी, आस पास है खुदा। या तू ना जाने आस पास है खुदा, कैलाश खेर है हाँ ये। हाँ उफ, हाँ। ओ हम्म इसका तो म्यूजिक इज सो ब्यूटीफुल। फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली थी, फिल्म अच्छे से मुझे लगता है बनी भी नहीं थी ये फिल्म। हम्म। पर 2010 में ना, जब टीवी पे या रेडियो पे इसके गाने आते थे ना, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, जस्ट लिसनिंग, यू जस्ट स्टॉप and listen to the songs of Anjana Anjani. It's especially these three songs, four songs which I've mentioned. I don't like हम्म उसका टाइटल सॉन्ग इतना अच्छा नहीं है, जिसमें वो गाते हैं ना, अनजाना अनजानी, that is okay, but हम्म। बाकी ये दैट गाने। साउंड्स लाइक दैट्स, वो तो इसका ट्यून तो साउंड लाइक इसका युवा, हाँ, वो युवा का अनजान, गाना लगा। हाँ, somewhat like ये, that, I don't know, there's नो also नो, this. दिस इज अनजाना, हाँ 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 हाँ, अनजानी। अनजानी। you're ए right. ए ए ए ए। Yeah, करेक्ट। yeah, you're right. You're right. I was singing the Yuva song by mistake. Yeah, that's a beautiful song, that Yuva वाला. But ये जो है, मुझे इसके सारे गाने पसंद है। तू न जाने आस पास है खुदा। I don't know the lyrics, but I just love the हम्म। songs of this. नैना लगिया बारिशां के छोटे छोटे वाह नालिनी जी, वाह। काली काली, oh, I wish I knew the lyrics.
तो ये अनजाना अनजानी फिल्म बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी और मुझे ये चली भी नहीं थी, पर इसके गाने मुझे बहुत पसंद है, विशाल शेखर हम्म। जी। तो मेरा जो नेक्स्ट नेक्स्ट फिल्म है वो काफी शॉक करेगा लोगों को। हम्म। आपके और मेरे बीच में तो अच्छी खासी बहस भी हुई इसके ऊपर, इसको लेकर के। हाँ। बट मैंने प्योरली सिर्फ इसलिए इस फिल्म को रखा है क्योंकि ये फिल्म जो है ये चली नहीं, लेकिन गाने जो थे वो ब्लॉकबस्टर गाने थे। और फिल्म का नाम है दिल से। हम्म। और दिल से जो है वो पिक्चर एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है कि फिल्म आप कितनी ही अच्छी बना लो, आप फिल्म का टेक्निकली कितनी अच्छी चीजें कर लो, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें कर लो, फोटोग्राफी अच्छी है, लोकेशंस अच्छे हैं, परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छा, सब कुछ है, लेकिन अगर कहानी ठीक नहीं है तो ठीक नहीं चलती। मुझे लगता है इस फिल्म में क्या हुआ था कि दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ the Indian army were the perpetrators in the northeast region of India. That is what they were trying to show in the film, and because of which Manisha Koirala then comes to Delhi as a suicide bomber, wanting to effect a blast. Uh, Somehow, it didn't work with the Indians, that the Indian army is a perpetrator in any way. That doesn't work at all. But उसके गाने जो थे, कोई भी गाना उठा लो, मतलब चाहे छैया छैया हो, चाहे दिल से का टाइटल ट्रैक हो, और उसका वो गाना है ना सतरंगी। सौरभ, हाँ, और वो एक वो जो तमिल तमिल में और आ, मलयालम से उसका शुरू मुख, होता है वो गाना, हाँ। वो मलयालम है। आई थॉट इट वाज तमिल। मलयालम से शुरू होता है वो गाना। So the Malayalam lyric was written by one of the prominent Malayali lyricist. He passed away, Girish Putanjeri. He was the lyricist of the Malayalam lines. बट वो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, और अच्छा होगा नहीं बोलना, बिकॉज मैं उसकी अगर प्रोनाउंसिएशन कोई नहीं करेक्ट आशु नहीं जी, करूंगा। आधे लोग जो हिंदी स्पीकर्स है वो ऐसे ही कहते हैं, कुंदरी मंजी गंजी क्यों, कुंदरी मंदी गंजी नहीं, क्यों, लेकिन ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आई बिकॉज every language needs to be respected. But because you're कोई नहीं, मैं a, भी मलयाली हूँ, मैं ही मजाक उड़ा रहा हूँ। चलता है। नहीं नहीं नहीं, पर आप आपकी भाषा है, आप करो, आप गाओ वो लाइंस। मैं क्या? हाँ, बिल्कुल। अरे हाँ, കുഞ്ചി കൊഞ്ചോ മുന്തിരി മുട്ടൊളിച്ചെന്തിക്കോ മുഞ്ചനി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ താങ്കിണ്ണക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് തങ്ക കൊലുസല്ലേ കുരുകും കുയിലല്ലേ മാരണമയിലല്ലേ തങ്ക കൊലുസല്ലേ കുരുകും കുയിലല്ലേ മാരണമയിലല്ലേ. That's the इसका मतलब lyrics. क्या है? What does this mean? इसका मतलब है पुंजरी तंजी कुंजी क्यों का मतलब है स्माइल एंड फ्लर्ट विथ मी. मुंदिरी मुत्तुली Okay. चिंदी को का मतलब है थिंक ऑफ किसेस स्वीट एज ग्रेप. हम्म। मुंजनी हाँ, वरने चुंदरी वाले का मतलब है ओ यू ब्यूटीफुल गर्ल. हाँ, तांग नक का तगदनी मतलब वो ड्रम बीट्स है जो तबले की तिरकिट है, okay. ये है उसका मतलब. मतलब नलिनी जी कमाल, देखो हमारे पॉडकास्ट का पहली बार शायद किसी ने इसके वर्ड जो है लिसनर्स तक पहुंचाए होंगे कि इसका मतलब क्या है, पोइटिक मतलब क्या है, वो हमारे मलयाली फ्रेंड और को होस्ट सौरभ नायर ने सबको सुनाया है आज। सही है। और आपने जो एल्बम चुनी है आशु जी, वो किसी भी जमाने में, किसी भी दशक में, ये टॉप की एल्बम है म्यूजिक। हाँ, आपको बताऊं, उसका जो गाना था चल छैया 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 चल छैया छैया, आप उसके लिरिक्स देखो क्या है। ओह ओह। सारे सारे इश्क की छांव चले छैया छैया, हाँ। पाँव छनक चले चल छैया छैया, चल छैया 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 चल छैया छैया छैया, सारे इश्क की छांव चल छैया छैया, सारे इश्क की छांव चल छैया, पाँव छनक चले चल छैया छैया, पाँव छनक चले चल छैया, चल छैया 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 चल छैया छैया। हाँ, गुलजार साहब बोल रहे कि इश्क के छांव में चलते हैं, सब इश्क की छांव में चलते हैं, जी। पाँव जो है छनक चलती है, इश्क की छांव में चलते हैं, मतलब टू वॉक अंडर द शेड ऑफ लव, ऑफ रोमांस। What beautiful line, no? What a ओह beautiful thought it is. ओह यस। इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम थैया थैया, बुल्ले शाह. हाँ, तो I mean Gulzar साहब has been quite inspired by Bulle Shah in various ways, but मतलब पर फिर भी मैं आपको बताऊं, ये गाना जो है ये लिरिक्स के लिए इतना पॉपुलर नहीं हुआ था
जितना पॉपुलर हुआ था इस फैक्ट के लिए कि एक गाने को ट्रेन के ऊपर किया था। और इसकी बीट्स, पर इस फिल्म का फेवरेट गाना मेरा ए अजनबी हमेशा से। हाँ हाँ। वो But I just for 1 second I would like to come back and take you people back कि ये ट्रेन के ऊपर गाना किया था years back. There is another song जो अगेन ट्रेन के ऊपर किया था. Do you remember that? इसके पहले बहुत साल पहले हाँ हम दोनों दो प्रेमी फ्रॉम अजनबी, हाँ, दोनों दो प्रेमी दुनिया दुनिया छोड़ छोड़ चले, उसमें राजेश खन्ना था ना? हाँ, और जीनत अमान। उफ, और उसका म्यूजिक उफ, आर.डी. बर्मन। आर.डी. बर्मन, हाँ ओ क्या म्यूजिक है। सो बीच में वो बोलता है ना, ओ कहाँ चले, हाँ then she's sitting and thinking something, और राजेश खन्ना says क्या सोच रही हो, तो she says मैं कुछ भी तो नहीं, कुछ तो। so then she sings ऐसा ना हो तो कभी छोड़ दे मेरा साथ, and he gets angry and he says फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। पूरा सीन है, पूरा सीन है. So that was a romantic song on a train. This became more an item song where people were dancing on a moving train again, where Malaika was there along with Shah Rukh, and there was a whole set of dancers that were dancing on the train, and it became iconic that गाने को ट्रेन के ऊपर इस तरीके से पिक्चराइज किया गया था. तो उसका मोमेंट ये जो चीज थी ये बहुत पॉपुलर हुआ. बट आप जो गाना कह रही थी नलिनी जी, वो मतलब इसके सारे ही गाने बहुत अच्छे हैं. एवरी सॉन्ग ऑफ द फिल्म. द अदर थिंग इज, इफ आई रिमेम्बर राइट, दिल से वॉज अ फिल्म जिसके गाने जो है पिक्चर जब रिलीज हुई थी तब तक पिक्चर गानों ने पिकअप नहीं किया, और पिक्चर रिलीज होके नहीं चली और गाने उसके बाद पिकअप किए, बिकॉज आई थिंक the music, the producers of the film were Venus, and Venus did release the film, the songs only probably 30 days before the release of the film. और पहले ऐसे हुआ करता था कि almost 45 days पहले, minimum 45 days पहले प्रमोशंस शुरू हो जाते थे, गाने चलते थे, गानों को चलने का टाइम दिया जाता था ताकि गाने सिंक हो सके ऑडियंसेस के अंदर और गाने चल पड़े. तब लोग जो हैं जब थिएटर में जाएं तो they would hum the song along with them in the film, in the whilst it is being played on screen. ये वाले जो गाने थे, इनको उतना टाइम नहीं मिला कि लोगों तक वो पहुंच सके जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था. उतने में पिक्चर रिलीज हुई, पिक्चर चली नहीं और गाने उसके बाद पिकअप हुए. आशु जी, थोड़ी सी मेरी याददाश्त इसमें थोड़ी सी अलग है. पता नहीं, ये 1998 में फिल्म आई थी. आई वाज इन बैंगलोर एट दैट पॉइंट, and wherever I went, and we used to do theater rehearsals and all that, and everywhere these Dil Se songs were playing before the movie release. So I seem to remember it a little different, and this Chaiya Chaiya song, of course, but ye wala gana ए अजनबी, you know. तो ये, और of course सतरंगी रे, तो सतरंगी रे की जो पिक्चराइजेशन है, उफ, मतलब it's one of my Rahman's favorite albums. This is the top of the line at any decade that you go. बहुत अच्छी एल्बम है. Yeah. और बहुत मीनिंगफुल है, बहुत मीनिंगफुल. जैसे आप कह रहे थे ना लिरिक्स का, गुलजार साहब के लिरिक्स हर गाने में इतने मीनिंगफुल है. ब्यूटीफुल. थैंक यू सर. सतरंगी गाने में 7 इमोशंस भी है ना, 7 स्टेजेस ऑफ लव. दिलकशी है, उन्स है, इश्क है, अकीदत है, इबादत है, जुनून है, मौत है. 7. क्या बात है. अकीकत है, इबादत है, जुनून है. सुपर. और सतरंगी गाना मुझे लगता है ये जो है ना, ये लद्दाख में पिक्चराइज किया हुआ था. साथ में एक्सप्लोजन्स वगैरह भी चलते हैं बैकग्राउंड में, इफ यू रिमेंबर. छोटे बच्चे हैं उसमें. And the way Shahrukh has run and jumped in a place. That is not Satrangi. That is Dil Se. The title. Oh, that's Dil Se. Sorry. दिल से का टाइटल सॉन्ग है. उसमें एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं और शाहरुख खान भाग रहा है, कूद रहा है. कभी कभी क्या है ना, ऑडियंसेस को समझ में नहीं आता है कि व्हाट द एक्टर्स एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी गोइंग थ्रू वाइल्स्ट एक्चुअली पिक्चराइजिंग दिस.
दिस हैज बीन पिक्चराइज्ड इन लद्दाख वेयर ऑक्सीजन वैसे ही कम होता है, और वहां जब इंडस्ट्री के लोग पहुंचते हैं तो 1-2 दिन शूट नहीं होता वहां, बिकॉज दे नीड टू लेट द पीपल एक्लिमेटाइज टू द एटमॉस्फेयर ओवर देयर। उसके बाद भी दे स्टार्ट पिक्चराइजिंग, और लोग, बिकॉज व्हेन यू रन यू नीड मोर ऑक्सीजन एंड देयर इज लेस ऑक्सीजन एनीवे, एंड शाहरुख इज रनिंग एंड जंपिंग एंड डूइंग ऑल दोस थिंग्स एज इफ ही इज एट सी लेवल. And he's It playing is with those children, He's playing with his jumping up children. and down. It's commendable the kind of work that these people, मतलब फिल्मों में, I mean, I'm being part of the fraternity, so I am telling you this. I'm amazed by the amount of effort that goes behind the screen. I love a line which, one big cameraman said whilst making of a film. तो एक नया किस्म का स्टॉक आया था जब 35 यूज हो रहा था. It was 800 ASA or something like that. 800 ASA is a stock जो बहुत लो लाइट पे काम शूट होता है, तो आपको लाइटें कम जरूरत पड़ती. तो कैमरामैन ने आकर के ही स्पोक अबाउट इट एंड सेड कि स्टॉक के बारे में, नेगेटिव के बारे में बात कर रहा था, टेक्निकल चीजें बात कर रहा था. और फिर उसने एक लाइन बोली जो छप गई मेरे दिमाग में. वो लाइन ये बोली कि देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स दैट हैव गॉन इनटू मेकिंग ऑफ दिस सॉन्ग. Lot of effort gone into making of this. Hopefully you do not see any of that and you enjoy the song. Wow. Yeah. What a lovely line. कि hopefully you do not see the effort Effort. that goes behind making of a film, but you only enjoy and get entertained. Yeah. As a film, I loved this film also. I loved it. I was actually, for a long time, it was a mystery to me कि चली क्यों नहीं. हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि इसका कारण ये है, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने कनेक्ट नहीं किया, बिकॉज जो विलन है वो, the rest of the Indians don't see them as villains at all. And that is one of the reasons why it didn't connect with the people at large. But that is my understanding, my take. So my second film is Dil Se, which I spoke about. आपने ऐसा फिल्म चुना कि इसमें इतने सारे ट्रिवियाज हैं, पूरा गाना आप ब्रेक डाउन हाँ. कर सकते हैं, ईच एंड एवरी सॉन्ग ऑफ दिस फिल्म. हाँ, इसका background music इस film का, उफ. मतलब इतना, this is again a soundtrack that stays with you and will stay, like नलिनी जी ने आपने कहा कि ये रहेगा आपके साथ में for such a long time. I mean, I'd be shocked to know if there was anybody who didn't like the music of Dil Se, है ना? बिल्कुल. I think it was a universally hit film, hit song, hit Yeah. track. And this is one of the best soundtrack of Mani Ratnam and Rahman's combo. Rahman's, I agree. It is one of the best. In fact, it's the best. I prefer this to Roja also. Though Roja was fantastic, but I prefer Dil Se soundtrack. Because इसमें moods इतने अलग-अलग हैं, इसमें इतने moods अलग-अलग हैं. और इसके lyrics, my gosh, बहुत. नलिनी जी बॉम्बे के ट्रैक्स कितने अच्छे हैं. हाँ, बॉम्बे के भी, उफ, वो भी है. पर somehow दिल मतलब से, उसका रेमो वाला ट्रैक तो मतलब हाँ, legendary है. But anyway, since we are talking about films that haven't sort of succeeded, or people haven't liked it for some reason or the other, but the music tracks were brilliant. So hence, this one falls into that category. But this is my second film. So Saurabh, over to you. Okay, so third film, अभी again 90s से 80s जाते हैं. So आर.डी. बर्मन के का जिक्र मैं आप लोगों से कर भी रहा था पहले कि बिल्कुल. बहुत सारे ऐसे फिल्में हैं जो बहुत ही बुरी तरह पिटी या मतलब लोगों को पसंद नहीं आई, मगर उसके साउंड ट्रैक विच वॉज कंपोज बाय आर.डी. बर्मन, वो एकदम चार्ट बस्टर्स है. बहुत सारे ऐसे भी मूवीज हैं जिसमें गाने इतने बढ़िया थे मगर फिल्म फ्लॉप होने की वजह से वो अंडररेटेड हो गई. मगर एक फिल्म है कंपोज बाय आर.डी. बर्मन एंड दैट इज बड़ा दिल वाला. ओह, बड़े दिल वाला. बड़े दिल वाला. हाँ. ओह, बड़े दिल वाला. ओह, क्या गाने हैं उसके. उसके सारे गाने टॉप नॉच है. और सबसे मुझे लगता है सबसे फेमस गाना है जीवन के दिन. हाँ. मगर उसके बाकी गाने भी बहुत बढ़िया हैं, जैसे कि तुझ में क्या है दीवाने, आया सनम, आया तेरा दीवाना, अभी ना जा, अभी ना जा. या क्या है ना सौरभ, अनफॉर्चुनेटली लिरिक्स से हमको कुछ ज्यादा समझ में आता नहीं है जब तक धुन नहीं आती. गाइए. कौन सा गाओ? गाइए ना. तुझ में क्या है दीवाने गाता हूँ. नहीं, वो बड़े दिल वाला गाओ. दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग. वो गाइए प्लीज. जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले,
कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मसाले। और आपको इसका ट्रिविया पता है? इसके दो आवाजें थी, एक प्राण साहब के लिए इस्तेमाल की थी और एक ऋषि कपूर के लिए बैकग्राउंड। उदित नारायण फॉर प्राण। हाँ, उदित नारायण के पहला गाना था ये, ही sang फॉर प्राण साहब। और इसमें एक डिफरेंस भी है, सो देयर आर टू वर्जन्स वेयर वन इज लता मंगेशकर सिंगिंग एंड सेकंड इज किशोर दा। लता मंगेशकर हम्म उदित नारायण और किशोर दा का एक सोलो वर्जन है। तो हम्म दोनों में एक अंतर है, जो लाइन है फर्स्ट अंतरा, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी एक दवा भी। हाँ हम्म तो किशोर कुमार से नॉर्मल, वो ज्यादा मुर्की या और ज्यादा वेरिएशंस नहीं डालते हैं जब ये लाइन आता है, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी एक दवा भी, बस इतना इतना में ही खत्म हो जाता है। मगर लता मंगेशकर वाले इसमें पोर्शन में, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी एक दवा भी, ऐसे ऐसे हाँ वो मतलब तान, एक तान देती है, मतलब स्ट्रेच देती है, हाँ हाँ, हरकत आती है वहां पे। हरकत आती है। हाँ लाइक शी कंटिन्यूज द लाइन एंड फिर दूसरे लाइन में आती है विदाउट एनी हम्म इंटरप्शन। हम्म और ये जो लड़की का पार्ट था वो सारिका पे किया था ना, पिक्चर है। या हाँ यस। या, बहुत बढ़िया गाने। और शुरुआत का गाना उसमें जिसमें गोली चलती है ना, ऋषि कपूर, द मूवी बिगिंस विद ऋषि कपूर who's framed for a murder, Saurabh, and he's singing that song. It's a very popular song. विच वन, आया सनम आया, वो गाना है क्या? हाँ वही 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 वही। या और ये जो गाना है, तुझ में क्या है दीवाने, उसमें उसमें जो सेकंड जो अंतरे के ट्यून्स है, विच इज वेरी सिमिलर टू आडीज अदर सॉन्ग, वो कौन सा गाना है, ऐसा समाना होता, उसका जो अंतरा है, सेम सिमिलर ट्यून्स, सिमिलर मेलोडी। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इस एपिसोड को सुन के। हाँ इतना इन्वॉल्वमेंट है, इतना म्यूजिक है, इतनी मेलोडी है, और साथ में सारे गा रहे हैं। हम हम अपनी लिमिटेशंस में जितनी भी गा रहे हो, लेकिन उससे हमारा इमोशन जो है गानों के प्रति, वो होपफुली लोगों तक पहुंच रहा है। बट आई एम रियली एंजॉयिंग दिस होल थिंग। दिस इज रियली रियली नाइस। नलिनी जी, योर चॉइस। मेरे तो नेक्स्ट है, अभी नेक्स्ट फिल्म। इसने मेरा मूड बनाया तो मैं उस फिल्म पे जाऊंगी, पर दो तीन है मेरी चॉइसेस तो। एंड आई एम गोइंग टू आस्क सौरभ टू सिंग वन सॉन्ग, प्लीज सौरभ, ठीक है? मेरी अगली चॉइस। और सौरभ, मेरे पास इतना ट्रिविया नहीं है आशु जी, और हाँ मेरी बहुत अच्छी फिल्में हैं, पर अब मैं एक फिल्म पे जाऊंगी जिसका आई एम टेलिंग यू 1000% इस लड़के के पास इसका ट्रिविया भी होगा, और वे ये गा के सुनाएगा भी। मुन्ना, मुन्ना के पास, हाँ, मोन्ने मुन्ने के मुंडे के पास। पास ट्रिविया भी होगा, इसीलिए मैं उस फिल्म पे जा रही हूँ, वरना मेरे हाँ पास और चॉइसेस हैं। बट आई एम गोइंग टू 1981 की फिल्म, उसका नाम था हरिजाई। आर डी हम्म बर्मन का म्यूजिक, रमेश बैल ने डायरेक्ट की थी, और इसमें एक हम्म गाना है, खैरिशु वारिश वेरिशु। कैरिशु वारिशु। अब इसका ट्रिविया बताइए, इसके बहुत सारी ट्रिविया है। ये क्यों बना, क्यों था ये गाना बना, क्यों था? एक्चुअली द सीन इज बिटवीन कश्मीर, वो कश्मीरी मैन एंड हिज सन ना। हाँ वो ऐसा कहा जाता है कि कैरिशु वारिशु, हाउ आर यू, एंड आई एम फाइन। या, बट आई थिंक समवेयर आई हर्ड दैट, आई थिंक अमरीश दा टोल्ड दैट वो मतलब जिब्रिश है, आई डोंट नो दैट। okay, I didn't hear this from Amrita, but Gulshan Babra was happened to be in Kashmir on a holiday or something, Ashuji. So हम्म over there, near wherever, this road, and there was a railing, and there was a young couple, and they हम्म were talking to each other, and he was a little distance away, and हम्म he could just kind of hear their conversation, but the kind of syllables or the vowels or the sounds that he heard sounded like Arishu or Shu or Shu हम्म or Shu something. So हम्म he thought, so he went, tried to listen, and then he heard the full word, and he quickly ran away from there because he thought pata nahi ab panga kuch hone wala hoga. They might be fighting with each other or something. हाँ So then he wrote it down, actually, what he had heard this couple saying. He हम्म wrote it down, and then when R.D. Burman was making the music for Harjai, they were sitting up, sitting in over सब, तो पता नहीं अब exactly मुझे पता नहीं, but इन्होंने जो लिखा था ना,
गुलशन बावरा ने कागज पे, तो वो आर.डी. बर्मन साहब ने देखा and he asked him what is this, so he says no, I was in Kashmir, and so he says, ye bolo, what is this word, so he says khairi-shu, varishu. So then they quickly, whatever, they found out the meaning and all, and Panchanda told him, I'm going to use this in a song. So that's how the song was made. But हरजाई का फेवरेट गाना तो मुझे वही है, पल तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं ना। गाइए गाइए गाइए। मुझे नहीं, बहुत हाई इसका है, मेरी वॉइस क्रैक होगी। आप कौन सी लता मंगेशकर हैं? आप जैसे गाती हैं वैसे गाइए। नहीं हमसे गवा रही हैं या खुद नहीं गा रही हैं? आप बहुत अच्छा गाते हो और आशु जी बहुत वो भी अच्छा आपकी गाते हैं। फरमाइश पे हम लोग गा रहे हैं, नहीं इसलिए आप भी नहीं, गाइए। नो आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, आप दोनों बहुत अच्छा गा रहे हैं। और इसके मैं गानों के नाम बस बता देती हूँ। ये रुत है हसीन एक गाना है, तेरे लिए पलकों ये की झालर, ये हसी धड़कन भी ये जवां, जवां हर जाई नहीं नहीं ना ना तुम बेवफा। So sing that तेरे लिए, then I'll sing with you because आई डोंट, इसलिए मैं आपको बोल रहा था गाइए, नहीं मुझे पूरा नहीं पता। नहीं, वो एक लाइन मुझे भी पता है, तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, something I don't, that's my favorite song. इसमें और एक इसका एक गाना विच इज माय फेवरेट सॉन्ग, वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम द साउंड ट्रैक, तुझसा हसी। हाँ, तुझे तुझसा हसी देखा न कहीं, इसमें एक मोटिव हमेशा बजते रहता है, मतलब एक म्यूजिक है जो पूरे गाने में बजते रहता है, टिनिंग 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 टिनिंग। इसका और एक ट्रिक ये है कि दिस सॉन्ग वाज सपोज्ड टू बी इन अ फिल्म कॉल्ड जबरदस्त, नासिर हुसैन, और उन्होंने फिर वो लिरिक्स उन्होंने परमिशन लिया, तो नासिर साहब ने कहा कि एक काम करो, इसमें अंतरे में जबरदस्त वर्ड आता है, तो वो वर्ड आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पिक्चर का टाइटल है। सो उसमें जो लाइन है, कुदरत का तू है करिश्मा जबरदस्त, समथिंग ऐसा था, तो उन्होंने जबरदस्त हटा के कशमकश, गुल बदन ये सब डाल दिया। अच्छा, इसमें एक और वो गाना ना सौरभ, वो भी गा दीजिए, कभी पलकों पे आंसू है। I don't know. I don't. I've heard the song, but I don't बहुत know the अच्छे tune. गाने हैं इसके भी। और फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं चली थी, पर इसका म्यूजिक इतना चला था, बहुत चला था, और आज तक याद है। और मेरा फेवरेट तो वही है, तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं। और मुझे और कोई ट्रिविया नहीं आता, जितना आप लोगों को आता उतना नहीं, पर a film that did not work but had beautiful music is Har Jai. एंड सो फ्रॉम माई एंड, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, मैं आपको इस फिल्म का भी ट्रिविया जो है वो तो अगेन ट्रिविया किंग बोलेंगे उसके बारे में, लेकिन अगेन ये फिल्म का म्यूजिक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली पॉपुलर, very very every song is outstanding, we can literally hum every song, but the film didn't work again because I think for people it was a little ahead of time, people didn't understand it, और वो फिल्म थी ये वादा रहा। ओहो आशु जी, कौन सी फिल्म का नाम ले लिया आपने? तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा। मतलब इसमें जो तालियों वाला जो एक छोटा सा टक टक टक, वो इतना पॉपुलर हुआ था, इतना पॉपुलर हुआ था, गाने इतने पॉपुलर थे इस फिल्म के, मतलब ट्रिविया पे तो आएंगे, वी विल कम कि यू एंड आई बोथ ऑफ अस नो बिकॉज़ व्हाट दे नीडेड टू डू। वन मोर रिक्वेस्ट, वो किशोर कुमार वाला जो पार्ट है वो गाइए ना। कौन सा वाला? मैं किशोर कुमार आवाज थर्ड। हाँ, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, जहां से निराला मन मीत मेरा, मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर हो ना जुदा, हाँ ये वादा रहा।
Oh, ला 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 ला। मतलब इसके तो म्यूजिक भी पीसेस याद हैं, इतना oh, अच्छा है। oh. इस पिक्चर का दूसरा गाना है, जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी जिंदगी, आओ मिलजुल कर सुख सुख बांटे, क्यों हम रहे अजनबी, हम सफर हैं सभी। कितने अच्छे गाने हैं, इतने मेरा फेवरेट उस वो गाना है, ऐसा कभी हुआ हाँ नहीं, नहीं, जो भी जो भी हुआ हुआ, हुआ। हुआ। सुनीता सुनीता देखते स्टार्टिंग मारता। देखते देखते आज मुड़ गए, पता नहीं, और दिल मेरा देखा दिल तुम ना होश रहा। में गुम हुए हो, शाया तो दिल मेरा दिल न रहा। ऐसा हाँ, कभी हुआ नहीं, जो भी हुआ खूब हुआ। हाँ। मतलब इसके सारे गाने इतने प्यारे हैं, अरे इतनी मेलोडी है, इतने म्यूजिक पीसेस प्यारे हैं इसके, कि आप कोई गाना नहीं छोड़ सकते हो, एंड यू गाते गाते भी स्माइल आ जाता है मुंह में। आशु जी, वो क्लाइमैक्स वाला गाना गा दीजिए जो वो स्टेज पे गाते हैं ना। इश्क मेरा बंदगी है, इश्क मेरी जिंदगी है, आशिकों का हर्फ ढेरा, आशिकों का हर्फ डेरा, आशिकों के लाखों जहां, इश्क मेरा जिंदगी है, इश्क मेरी बंदगी है। मतलब I उफ, don't know, yaar. I mean, ओह, goose flesh, and of course, Goose Flesh। everybody knows कि दो हीरोइनें थी फिल्म में, हाँ। टीना मुनीम और पूनम ढिल्लों. They हम्म। wanted to create some kind of a connection between the two of them because Rishi Kapoor's character is told that Poonam ढिल्लों is not alive. और वो सिर्फ आवाज सुन करके उसको घंटी बजती रहती कि ये वही है, this has to be the same person. So they couldn't have Tina Muneem dub and Poonam ढिल्लों dub. And that is where the mastery comes in, and Jaya Bhaduri comes in dubs for both of them. Now, I can tell you as a filmmaker, when the film is dubbed, you can either, your performance can either fall depending on how your dubbing is, or it can raise a few notches. And Jayaji's dubbing, when it comes, she definitely raised the level of the actor's performance on screen and raised it beyond a particular level. सो दिस आई थिंक वाज यूनिक फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म। इसके पहले शायद कभी हुआ नहीं, इसके आगे भी ये हुआ नहीं है कि दो किरदारों का एक ही इंसान ने आकर के डब किया है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, और प्लास्टिक सर्जरी वाला जो एंगल है वो उस वक्त शायद इंडियन ऑडियंस को इतना ज्यादा समझ में नहीं आया, लोगों को कहानी ज्यादा कनेक्ट हुई नहीं। बट गाने तो कमाल हैं, आज भी गाने इतने प्यारे चलते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रिविया जो है वो आई विल पास इट ऑन टू सौरभ. सौरभ विल आल्सो शेयर सम ट्रिविया ऑन दिस. I just wanted to say that Jaya Bachchan did a fabulous job. For me, the film worked beautifully. I could never understand for years together why the film didn't work. Because when you walk into the theater and you hear, it's based on a novel by Daniel Steele, as we've discussed this film in another podcast. And the name of that novel is called The Promise. And The Promise is, the novel was very, very nice. It was made into a film, into an English film also. Hollywood made a film. I've seen that also, but Ye Vada Raha was much better than that. That's what I felt. It had far more emotion. तो सारा कुछ था उसमें भी, but obviously गाने नहीं थे. और प्रॉमिस में जो लिखा है, किताब में जो नॉवल में लिखा है, वो beads, they are actually that, the beads. They go around a pole in the promise, around a tree, and they wrap those beads around, and that's their promise they make to each other before she meets with that accident, and the mother who comes and tells him lies, that she's not anymore. So or Baki, I thought, for me the film was so attractive because of Jaya Bachchan's voice. She did a marvelous job in the dubbing, very good. And मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये फिल्म क्यों नहीं चली, बहुत अच्छे गाने थे इसमें. But Saurabh, you were saying something. No, I was just telling that आप लोगों ने सारे ट्रिवियाज दे दिए जो मुझे पता थे. इतने ही मुझे भी इतने ही पता है. बट मतलब क्या है ना,
पिक्चर के बोलते हैं ना, गाने जो है वो फिल्म के सोल बन जाता है। इस फिल्म का सोल जो है वाकई इसके गाने थे। आरडी दा मतलब पंचम दा ने ऐसे गाने दिए इस पिक्चर में, ब्रिलियंट म्यूजिक, ब्रिलियंट। So that is why I thought I must name this film at least, immaterial of whether the film, मतलब मुझे नहीं लगता कि पिक्चर खराब बनी थी। जो हम लोगों का एक मुद्दा था कि मतलब कुछ नहीं, फिल्में खराब ऐसी हैं नहीं कि है ये फिल्म, बिल्कुल भी। मेरे हिसाब से भी खराब हम्म, नहीं है। हम्म, वो जैसे आप कह रहे हो ना कि वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि वो प्लास्टिक सर्जरी, पता नहीं ऑडियंस ने कैसे एक्सेप्ट नहीं किया, बट आई डोंट नो व्हाई इट डिडंट वर्क, इट्स अ मिस्ट्री टू मी। इसमें गाने में, इसमें एक और गाना है ना, वो मैंने तुझे कभी कुछ कहा था, हाँ, जो भी कहा। ओ हाँ, मैंने तुझे कभी कुछ कहा था, जो भी कहा वो सुना। करेक्ट। उफ, कहाँ याद रहा था। Lovely, yeah. Very, very. This was a musical journey. This film was a musical journey. और एक्चुअली मैं बॉम्बे से दिल्ली आई थी किसी काम के लिए। आई यूज्ड टू लिव इन बॉम्बे दैट टाइम एंड आई कम बैक टू दिल्ली एंड आई रिमेंबर माय फ्रेंड हैड केप्ट इट रेडी वीएचएस पे, ये फिल्म। ये पहली बार मैंने वीएचएस पे देखी थी ये फिल्म, तो मुझे ये फिल्म तो कभी भूलती नहीं है कि बहुत ही सुंदर फिल्म थी। तो ये मेरी तीसरी फिल्म थी, ये वादा रहा। अब अगर इसको और अगर हमको सफर बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लगभग 1 घंटे के नजदीक नजदीक हम बोल चुके हैं। मुझे लगता है एक एक गाने का लिस्ट, एक एक फिल्म का गाना और बोलते हैं हम लोग। सौरभ, ओवर टू यू। व्हाट इज योर नेक्स्ट फिल्म दैट यू वुड लाइक टू स्पीक अबाउट? सो ये जो टॉपिक है, ये कभी इस फिल्म या इस एक्टर का जिक्र नहीं करे तो इनकम्प्लीट ही रहेगा। दैट इज इमरान हाशमी। उनकी सारी फिल्म भले ही चले या नहीं चले, गाने हमेशा हिट रहते हैं। हाँ, वो मुंबई में बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है, इसलिए आई विल चूज दिस फिल्म, तुम मिले। या ये उफ, करके वेरी गुड। फिल्म आई थी, जिसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किसी को, बस इतना ही पता है कि मुंबई फ्लड्स के ऊपर है। हाँ, वो 26 मगर जुलाई के ऊपर फिल्म थी, करेक्ट। यस, मगर इसके जो सारे गाने हैं, उफ, सुपर हिट सॉन्ग्स, दिल इबादत, के प्रीतम दा का म्यूजिक है। दिल इबादत, फिर तू ही हकीकत, फिर ओ मेरी जान करके गाना है। सब अभी भी जब भी गाने सुनता हूँ तो मुझे वो जमाना याद आता है जब वो 9XM, B4U म्यूजिक, MTV, ये सब हाँ सुबह हाँ सुबह इन सब गाने बजते थे। स्कूल हाँ, जाने से पहले ये चैनल वाले बोलते थे, बेटा स्कूल जाने से पहले ये गाना सुन के जाओ, हाँ, तो सुनता था मैं। हाँ, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। brilliant choice, beautiful music. Yeah, yeah, and the heroine in this film was Soha Ali Khan. Soha Ali Khan, yeah. Yeah, but you're right. You know, Imran Hashmi has had some wonderful songs to his credit. Yeah. And yes, whether he's lucky or he's actually chosen the songs or he's part of the idea of making the songs is another story altogether. But we've had some great songs sung on him. There is no doubt about it. Yeah. Is there anything else that you would Yes. like to add, Saurabh? No, I just want one thing is like इमरान हाशमी का जो सेकंड वॉइस है, सेकंड या थर्ड वॉइस है, वो जाना जाता है केके एंड हिमेश रेशमिया। And interestingly, Himesh Reshammiya was the first music composer who made KK do playback for Imran Hashmi. Himesh. Imran Hashmi. फुटपाथ फिल्म में हिमेश का एक गाना, बल्कि वो नदीम श्रवण ने साउंड ट्रैक किया था, मगर एक गाना था जो हिमेश रेशमिया ने कंपोज किया था, वो गाना तुम पे दिल, जो मैंने अभी बोला था कि दिल वो स्टाइलाइज करके बोलते हैं केके, that was one for Correct. Superb, yeah. Over to you, Nalini ji. आशु जी, मैं जल्दी क्योंकि ट्रिविया मुझे ज्यादा पता नहीं, लेकिन जल्दी हमारा पॉडकास्ट खत्म होगा, तो मैं आपको जल्दी 2-3 फिल्मों के नाम ले सकती हूँ, प्लीज? प्लीज, जरूर। अच्छा, तो मतलब हम लोग we will be left wanting if we don't get a bigger list from you or others if they have to. Of course, list is unending. But like I said in the beginning of the podcast, कि क्योंकि हमारी समय सीमा जो है वो उतनी ही है, तो उसके अंदर जितना हो सकता है, but yes, we will be that much more richer. बोलिए ना, please.
जी, तो आशु जी मैं जल्दी बोल देती हूँ। पराया धन करके एक फिल्म आई थी 1971 में। आर डी बर्मन का म्यूजिक है, डायरेक्टर है राजेंद्र भाटिया करके। आई डोंट नो इफ ही इज डायरेक्टेड एनी अदर फिल्म, बट इसके जो गाने थे सारे हिट हुए थे। फिल्म बिल्कुल नहीं, और इसका फेवरेट गाना मेरा वही है, दिल हाय मेरा दिल तेरा दिल, दिल से दिल मिल गया। डू यू रिमेम्बर द सॉन्ग्स ऑफ दिस फिल्म? मुझे ये गाना याद है। हाँ, और वो इसमें वो हाय मेरा दिल तेरा दिल, जिस इसे मतलब इस किस्म का बिल्कुल। हाँ हाँ। और इसमें वो है, आज उनसे पहली मुलाकात होगी, ऑल्सो अनदर ब्यूटीफुल ओहो, सॉन्ग। व्हाट अ सॉन्ग। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर फिर होगा होगा क्या, क्या 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 पता, पता, क्या क्या खबर, खबर। फिर होगा क्या क्या पता, क्या खबर। अच्छा आशु जी, एक और गाइए, आओ झूमे गाएं, इसी फिल्म का। आ, आओ झूमे गाएं, हाँ, मुझे गाइए। उसका गाना पूरा पूरा नहीं आता, आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग। आओ, सौरभ, डू यू नो दैट सॉन्ग? No, no. आओ झूमे गाएं, ओफ, वो उसके तो अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए हैं उसने। एंड फिर ये जो हम्म पॉपुलर हुआ था, तू प्यार तू प्रीत, ये हम्म। सब गाने इस फिल्म के। जीना मरना साथ तेरा मेरा, जुदा होना मुश्किल मुश्किल है, तू तू प्यार। प्यार। लवली। अच्छा, फिर मैं जल्दी दी जाती हूँ महबूबा पे, हाँ 1976 शक्ति सामंत की फिल्म। ओहो। हाँ। अच्छा आशु जी, इसका वो मेरे नैना सावन भादल तो है ही, सबको पसंद है, लेकिन इसमें जो गाना है चलो री, वो जो पहाड़ी धुन है, हम्म। चलो री चलो री चलो री चलो री, एक किसी प्यासे परदेसी के आने से पहले पर्वत पे सर। इसमें जो वो मटके लेके वो जाती है ना, हेमा मालिनी, हाँ सब पहली बार राजेश खन्ना उनको देख रहे हैं। इसकी पिक्चराइजेशन इतनी खूबसूरत है, और जो मटके का म्यूजिक है, इट्स सो ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स मेरे नैना उसके और मुझे वो गाना भी बहुत पसंद है, पर्वत के पीछे। पर्वत के पीछे चलने का गांव, गांव में दो प्रेमी रहते हैं, हो गांव में दो प्रेमी रहते हैं। ऐसे ना। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक क्लासिकल गाना है, ब्यूटीफुल है, मन्ना डे ने गाया है, गोरी तेरी पैजनिया। इट्स पिक्चराइज्ड ऑन राजेश खन्ना एंड हेमा मालिनी, वो रकासा है, और वो नाच रही है इस पे। आपको याद है ये गाना, गोरी नहीं। तेरी पैजनिया? एनीवे, सो मेरे महबूबा और बहारों के सपने, 1967 की फिल्म, ओ यस। नासिर हुसैन। इसका फेवरेट गाना ऑफ कोर्स मेरा वो है, क्या जानू सनम होती है क्या। वो डबल वॉइसेस में लता मंगेशकर ने, क्या जानू जानू सनम सनम होती होती है है क्या। मन की प्यास, चल उठे 100 दिए, सौ दिए हाथ, ना, 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 तेरा तेरा। नाम। अच्छा, फिर वो चुनरी संभाल गोरी, वो गाइए, गाइए। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, मान न दे टंक कोई, नजर कोई, हाँ, चुनरी संभाल कोई, हाँ हाँ। चुनरी संभाल, हाँ, हाँ, उड़ी चली जा, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, दोबारा से गाइए, अब चुनरी संभाल गोरी गाइए। नहीं नहीं, अब सौरभ गाएगा। नहीं नहीं, सौरभ बहुत गाइए अच्छा आशु कर रहा जी, है। आप ही गाइए अब, अरे नहीं नहीं आप ही नहीं नहीं हमारे नहीं, लिए गाना बोल रहे गाना। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे, मार न दे डंक गोरी, तारे रंग। सुपर्ब, एक्सीलेंट। आहा, हाँ। आहा, वो कहती, ओफो। ओ, वो फिर उसमें ये गाना जो बहुत फेमस हुआ था, सबसे ज्यादा आई थिंक ये गाना चला था, आजा पिया तो है प्यार दूं, ओहो, व्हाट अ गोरी मैया, सॉन्ग दिस इज। है ना? किस लिए तू
इतना उदास के सूखे होंठ, अखियों में प्यार किस लिए ओ आजा पिया तो है प्यार वेरी हो नाइस। गोरी मैया तो पे वार तू। सुपर्ब सॉन्ग, एक्सीलेंट। ये और अगर हम कंटेम्प्रेरी में आए तो जल्दी बोल देती हूँ, रॉय करके एक फिल्म आई थी, किसी को पसंद नहीं आई थी, उसके उसमें अमाल मलिक का म्यूजिक है, सारे गाने बहुत बढ़िया हैं और ये हाँ गाने सौरभ गाएगा। सिर्फ वो आई चिट्टिया हैव नो कलैया गाना मुझे नहीं पसंद, बाकी सब गाने मुझे पसंद है इसके। मुझे भी गाने ठीक से याद नहीं है। सूरज डूबा है यारों। सूरज और डूबा है यार, या उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था अरिजीत को। हाँ, और तू है कि नहीं। तू है कि नहीं, हाँ वो भी है। हाँ अंकित तिवारी सॉन्ग। हाँ, अंकित तिवारी। तो ये मैंने जल्दी जल्दी बोल दिए, ये गाने मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी मेरी जो लिस्ट है फाइनल, उसमें एक्चुअली मैं भी महबूबा सोच के रखा हुआ था। अच्छा। और हाँ, महबूबा के गाने बहुत अच्छे थे। मुझे शालीमार के गाने बहुत पसंद है। पिक्चर बिल्कुल ओ नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली। झिंगालाला हो, झिंगालाला हो, लाला हो। मतलब उसमें सारे गाने पुर, बहुत अच्छे पुर, पुर। थे। बट मैं जिस फिल्म का नाम लेना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है म्यूजिकली सुपर्ब था और पिक्चर बिल्कुल नहीं चली, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। कुछ तो ऐसी जगह पे मेरे को खबरें मिली थी, कितना सच है कितना नहीं मैं नहीं बोल सकता हूँ, कि थिएटर टूट गए थे। उस फिल्म का नाम है खामोशी। ओ वो संजय लीला भंसाली वाली। बाहों के दरमिया दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन। मतलब क्या उसके गाने सारे, धड़कन बनी जुबान बाहों के दरमिया, फिर वो वाला गाना, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, टेल ओहो। मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, चलूं नीचे के, क्या क्या वो कि उड़ती फिरूं, कुछ ऐसा है, मुझे अभी लास्ट का याद नहीं वर्ड्स। चलो सीधे के उल्टी चलो। चलो सीधे ही उल्टी चलो, हाँ चलो हाँ सीधे की उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर। बहुत अच्छे गाने थे इसके। आशु जी, वो वाला गा दीजिए ना, वो बहुत इमोशनल गाना, जो अपने पेरेंट्स सामने उसके बैठे हैं और वो माइक पे गा रही है। आप ये शुरू तो कीजिए। दिल सुन रहा है तेरे मेरे दिल की सदा, यस। ओ। तो इस फिल्म के भी म्यूजिक, इसमें भी मतलब ऐसा था कि पेरेंट्स जो हैं दोनों जो हैं बोल नहीं पाते। तो इसमें ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि नाना पाटेकर इज नोन फॉर हिज डायलॉग डिलीवरी एंड द वे ही स्पीक्स एंड हिज oratory skills that he has. And in this film he was dumb and deaf. हम्म। There were no dialogues. So he did not satisfy the curiosity of the audiences at all. और लोगों को लगा कि ऐसा कैसे यार, नाना पाटेकर को आपने डायलॉग ही नहीं दिया बोलने के लिए, हम्म। हमको तो उनके डायलॉग पसंद है। पिक्चर लोगों को समझ ही नहीं है। हम्म। ऑलमोस्ट एक्चुअली संजय लीला बंसाली practically had his career wrapped in this film, and it is thanks to Salman Khan again who stood up for him for his next film Hum Dil De Chuke Sanam, which made his career again go to the level that it did. But this film, so 1942 A Love Story, हम्म। उसका एक क्रेडिट था जो मैंने पहले इसके पहले नहीं देखा था, कि डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी हम्म। वो संजय लीला बंसाली। या या तो इसके ऊपर काफी सारा ये हंगामा हुआ था कि डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी क्या होता है, हम्म। क्योंकि डांस डायरेक्टर होता है, कोरियोग्राफी होती है। फराह के गाने थे उसमें, फराह ने शायद कोरियोग्राफी वगैरह की थी। हम्म। बट internally I think there was quite a discussion over the fact कि what is this director of photography, director of choreography. But I think 1942 Love Story had director of choreography as Sanjay Leela Bhansali. हम्म। That is why and उसके मतलब वो जो
they were well shot. Those songs were very well shot in 1942. Yeah. But वो जो गानों का चलन है संजय लीला भंसाली का, वो उसने आज तक कंटिन्यू किया. उसके गाने हैं भी अच्छे, अच्छे गाने बनाता है वो, और बहुत अच्छे वो पिक्चराइज भी करते हैं. It really looks very, very good on screen, and there's a lot of passion in the kind of visuals that he creates. But for me, Khamoshi was a film which had excellent music, but the film just did not work with the audiences at all. Yeah, I loved Khamoshi also, the music. हालांकि इसमें दो गाने हैं. अब मुझे एक तो सलमान पे पिक्चराइज है, उसमें ये भी है, I think, which is picturized near the graveyard, and when she puts on the scarf and she's going to church or something. That's copied from, I mean, that's inspired, like they say, from the Paul Anka, the singer's version, you know, which again they used his songs in Akele Hum Akele Tum also. Anu Malik ne use kiya tha. And since we're talking about it, yeah, beautiful. There's another movie, you will agree with me, Ashuji, Anurodh, Lakshmi Pyare ke gaane. Yes. Rajesh Khanna ne. वो भी फिल्म बिल्कुल नहीं चली, और सारे गाने अच्छे हैं उसके. आप वो गा दीजिए दो लाइनें. मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, वो शुरू होता आजा से. मैं उसका धुन याद करने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा, मेरे दिल ने तड़प के जब नाम तेरा पुकारा. ऐसा ही कुछ है ना? हाँ, बिल्कुल सही गा रहे हैं आप. और बिल्कुल इसका ही गाना था, आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ. और वो भी है, आते जाते खूबसूरत आवाज सड़कों पे. वो भी ये सब रेडियो पे सुनती है ना वो गाने. हाँ, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से इतने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं. But ये in this song I think Kishore Kumar also delivers dialogues. वो बीच बीच में कुछ lyrical dialogue बोल के फिर गाना कंटिन्यू करते हैं. आवाज की दुनिया के दोस्तों. हाँ. पर एक दो फिल्मों का नाम और लूंगा मैं, हालांकि उसमें बेशक हम लोग गाने के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. बट झनकार बीट्स इज अनदर फिल्म व्हिच हैड वेरी गुड म्यूजिक, एंड देवर विशाल शेखर हैड द म्यूजिक, और उसमें सुजॉय इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, ही वांटेड टू सॉर्ट ऑफ रिक्रिएट द फील ऑफ आर.डी. बर्मन. So he recreated. It's practically like an ode to R.D. Burman in Jhankar Beats. The other film is Jhoom Barabar Jhoom. उसका वो गाना गा दीजिए प्लीज, अभिषेक बच्चन और प्रीति जिंटा वाला. हाँ, अब वो देखो मैं ब्लैंक हो गया. नहीं, बोलना हल्के हल्के, वो वाला. अरे वो राहत फतेह अली खान का गाना. हाँ, राहत फतेह अली खान का गाना. हाँ. शर्मा गई मैं, भूलना हल्के हल्के, भूलना हल्के हल्के. क्या गाना है उसके, तो सारे अच्छे हैं सारे. उसका वो जो झूम बराबर का जो टाइटल सॉन्ग है वो बहुत अच्छा. हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है. हाँ, वो गा दीजिए. तो नहीं मतलब कुछ गाने जो हैं वो अटेम्प्ट ना करें, अच्छा है. झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम झूम बराबर, ऐसा कुछ है ना. हाँ. Amitabh Bachchan looked so sexy in this film. It wasn't fun. Oh yeah, his jacket with the guitar and all. My God. He looked, and the photographs and the publicity when it came out, Ashuji,
When just the हाँ poster and the photographs came up, everybody ran, including myself, that we have to see Bachchan in this avatar. And या film की क्या पता नहीं क्या सत्यानाश कर बट इसी शाद अली ने पहली फिल्म बनाई थी जिसमें उसके गाने भी बहुत अच्छे थे, साथिया. हाँ वो तो कॉपी अगेन ऑफ तमिल फिल्म मणि रत्नम की फिल्म आई Yeah, लाइक but he used to be, yeah yeah, but he used to be Mani Ratnam's assistant, na? yes So he exactly actually took And permission he from did a him and small then, cameo on Dil Se also. हाँ, हाँ. So साथिया के गाने बहुत बढ़िया लेकिन वो फिल्म चली थी ना आशु जी और वो फिल्म चली थी, इसलिए मैंने उसको डाला नहीं है यहाँ पे. जी जी बट उसके गाने भी तो आई एम जस्ट सेइंग कि एज अ डायरेक्टर शाद इज मेड. उसके बाद भी एक फिल्म बनाई शाद ने हॉकी के ऊपर, जो uh, अभी दिलजीत दोसांझ के साथ में जो पिक्चर थी, हाँ तूफान चित्रांगदा प्रोड्यूस तूफान. So तूफान that film was also okay, but इन दोनों फिल्मों में गाने बहुत अच्छे थे. शाद अली का choice of music, you can realize as a director, he knows the kind of melody, he chooses good melodies also. So ऐसा हमारा सफर यहाँ आकर के खत्म होता है. इस एपिसोड में गाने बहुत हैं, फिल्में बहुत हैं, और मुझे यकीन है कि सुनने वालों के दिमाग में भी बहुत सारी फिल्में चल रही होंगी जिनके गाने चल रहे हैं. और we would like to hear from you. What is your list of films that haven't worked or may have been made not up to the mark that it needed to, but the music has left a mark on you? It has left a stamp on you. We would like to hear that from you. And with that, we come to an end to this episode of Dime a Dozen on films that didn't work, but the music was brilliant. Nalini ji? Yes, thank you so much आशु जी and thank you to our listeners. और मैं पहले से ही माफी मांगना चाहती हूँ अपने लिए, सौरभ और आशु जी के लिए नहीं, पर अगर मैंने कोई गाने खराब किए हैं क्योंकि नहीं नहीं, आप हम बेसुरा तीनों की तरफ से, आप हम नहीं तीनों की तरफ से माफी मांगिए प्लीज. नहीं हम बहुत कोई अच्छा गाते हैं नहीं नहीं, मैं सौरभ। माफी नहीं मांगूंगा, मैं बहुत अच्छा गाया. हाँ लेकिन ये हम सुर में मतलब मूड में आ जाते हैं और हम वे वेरी सॉरी कि हमें इतने सारे लिरिक्स याद नहीं है बट एनीवे थैंक यू सो मच दिस वाज रियली फन आशु जी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू टू आवर लिसनर्स एंड डू सपोर्ट दिस पॉडकास्ट डायम अ डज़न फिल्म्स पॉडकास्ट. जैसे हम बोलते आ रहे हैं इंडिपेंडेंट पॉडकास्ट है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए और आई होप कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट ये वाला एपिसोड पसंद आएगा. थैंक यू सो मच. और जाते जाते ये बात मैं जरूर बोलना चाहता हूँ कि सौरभ जो है, ही इज टेकिंग अ ब्रेक, ही इज गोइंग ऑन अ ब्रेक, ही इज ट्रैवलिंग, and he will not be a part of our podcast for some time, and we will be anxiously waiting for him to come back because we will miss all his information, his trivia. I will definitely miss the hi till the time he comes back. हाँ, मेरे तरफ Yeah. से आप 3-4 हाय बोल देना. हाँ, मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो सौरभ जो है वो इंग्लिश में हाय हाय करता है कि हिंदी में हाय हाय करता है. but Saurabh, before you leave us and go on your break, please do say something, and we'd like you to, what do you feel about the podcast, about this episode, and how has been your experience? This was a musical podcast. बहुत ही संगीतमय, सुरमय podcast था और आपको बहुत अच्छा लगा. If you are a music lover, you will definitely love this, and you will definitely add some of the songs or some of the soundtracks on your Spotify list. और ये सारे गाने आप Spotify में ऐड करते वक्त हमारा podcast भी ऐड करिए, because our podcast is on Spotify also, and Amazon Music and Apple Podcast. So do subscribe to our show, our podcast, और सारे episodes सुनिए. I think there are 17 episodes, so do binge listen all the episodes. Thank you. और आशु जी क्योंकि सौरभ ब्रेक पे जा रहे हैं तो एक फरमाइश तो बनती है ना, ये जाते जाते एक हमें एक नगमा सुना जाए Please. हाँ प्लीज सौरभ कुछ गा दीजिए, गाइए ना. मेरे दिमाग में गाना नहीं आ रहा है, आता हूँ ब्रेक के बाद फिर गाएंगे. अच्छा चलो, मैं जाते जाते ना, मैंने एक नलिनी जी ने एक फिल्म का जिक्र किया इस एपिसोड में, उस गाने का कि कुछ चीज जो है वो सौरभ के लिए बोलता हूँ कि चलते चलते हाँ हमारी ये बात याद रखना, कभी अलविदा ना कहना. अरे वाह गा के सुना दीजिए प्लीज. नहीं, वो तो मैंने तो लिरिक्स को थोड़ा छेड़खानी की है. चलते चलते हमारी बातें याद रखना,
कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। तो सौरभ, कभी अलविदा ना कहना। हाँ, अलविदा कहने से क्या, वो एक डायलॉग है ना, कभी अलविदा ना कहना, में अलविदा कहने से मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। मिलने की उम्मीद और बढ़ जाती है। हाँ, पर फिलहाल हम अलविदा कहेंगे हमारे सुनने वालों से, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम फिर आएंगे और आपको सौरभ की यादें दिलाते रहेंगे। हम मजबूर करेंगे सौरभ जो है वो वापस आए ब्रेक से जल्दी। मेरा और साया हमारे हमेशा साथ होगा। तू जहां जहां चलेगा, एनीवे, so have a good holiday, have a good trip, enjoy yourself, Saurabh, and we'll wait for you to come back. In the meanwhile, thank you everybody for being patient with us. And नलिनी जी ने कहा है सौरभ तो बिल्कुल अनरिपेंटेंट है, बिकॉज वो तो बिल्कुल सुरीला है और बहुत अच्छा गाया है। बट मेरी तरफ से और नलिनी जी की तरफ से, हमारी तरफ से, हमने अगर कोई गलती की हो गानों में तो जरूर प्लीज हमको क्षमा करें। हम सिर्फ अपनी इमोशन बयां करना चाहते हैं इन सुरों के द्वारा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट आवर इमोशन। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट वीक।